A very good morning, students. Here, hope you all are very well and following the lockdown rules. Let's start class 7th English course book, Iris. These are the contents of your chapter, and now we are going to start first poem of your course book, and that is The Road Not Taken. Let us start and read what is going in this poem. The Road Not Taken is written by Robert Frost. As you all know, he is a great poet and was an American, but he relocated to England, where he get more famous and better appreciation. A Boy's Will, Northern Boston are his initial published works, and people regards him as the greatest poet of his generation. चलिए हम स्टार्ट करते हैं द रोड नॉट टेकन, पहली पोएम आपके इस बुक की. एंड लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्टली आई विल explain each line very clearly, trying to explain. Hope you all will understand it better. Two roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both. इस लाइन में पोएट एक ऐसी जगह आके खड़ा है जहाँ पे दो रास्ते हैं. दो रास्ते येलो वुड में डिवाइड हुए हैं. येलो वुड यानी ऑटमन का सीज़न है. ऑटमन का सीज़न पोएट एक्सप्लेन करना चाह रहा है, जो कि दो रोड्स हैं. जैसे कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में कि उसे कभी टू चॉइसेस में से एक चॉइस को सेलेक्ट करना पड़ता है. उसी तरह पोएट एक ऐसी जगह पे जाके खड़ा है जहाँ दो रास्ते हैं, ऑटमन लीव्स से, ऑटमन वुड्स से भरे हुए रास्ते. This is the explanation of first line. Then second, and sorry I could not travel both. Here poet says that he can't travel both the road at the same time. यानी दोनों रास्तों पर एक बार में नहीं जाया जा सकता है. पोइट ये बात वहाँ खड़े होकर के सोच रहा है. And be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could to where it bent in the undergrowth. यहाँ पे पोएट खड़ा है और सोच रहा है कि वो इन दो रास्तों पर अकेला तो जाना है उसे. इन दोनों रास्तों को एक साथ वो चुन नहीं सकता है, और इस वजह से वो कोई एक ऐसा रास्ता चुनना चाहता है जो कि आसान हो उसके लिए. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मीन्स बुशेस, बुश वगैरह से भरा हुआ रास्ता. एक ऐसा रास्ता ही फाउंड दैट द फर्स्ट रोड हैज़ बेंट इन द अंडरग्रोथ बुश. द पोएट हियर इन रिग्रेट to the choice of life considered the word undergrowth as unknown world. Here it means that poet will not take the road which is long and which is very difficult. He want easy way to go. At first he looked down the first road to the outmost to check whether it will be suitable or not. पहले वो चेक करेगा ये रूट जाने के लिए उसके लिए कौन सी सूटेबल है और कौन सी नहीं है, फिर वो उसके हिसाब से जाएगा. Let me explain you all one thing, that here second, third and fourth line are start with the same word that is and here the which lines which started with the same words are called anaphora. These three lines are anaphora. Then took the others as just as fair and having perhaps the better calm because it was grassy and wanted wear. अब ये आपकी लाइन 6 to 8 है. Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Here poet decided to check the other road. अब पोएट चेक करना चाह रहा है कि मैं पहले रोड को उसने चेक किया कि वो बहुत बुशी रोड है, बहुत सारा ज़्यादा वहाँ पे बुशेस हैं और जाने के लिए है कि नहीं सही. अब यहाँ पे ये सेकंड रोड चेक कर रहा है, सिमिलर, इसे ये भी सिमिलर टू द फर्स्ट वन लगी. एज जस्ट एज फेयर यहाँ पे एग्जाम्पल है सिमिली का, ठीक है. तो सिमिलर लगी उसे पहली रोड की तरह सेकंड रोड भी. The poet then found the other road to have better prospect because he found the other road to be less travelled and grassy one.
बट इसे सेकेंड रोड जो है, पोइट को सेकेंड रोड बेटर लगी ट्रैवल करने के लिए। समझ आया? यहाँ पे पोइट को सेकेंड रोड ज़्यादा बेटर लग रही है ट्रैवल करने के लिए क्योंकि वो ग्रासी है, और पोइट को फील हो रहा है कि लेस ट्रैवल करना पड़ेगा इस रोड पे जाने से। फर्स्ट रोड पे जाने से ज़्यादा ट्रैवलिंग है और सेकेंड रोड पे जाने से कम है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर and warned them really about the same. But when the poet passed through the road, he found that both the roads are equally travelled. जब पोइट उस रोड पे गया तो उसे लगा कि दोनों पे तो बराबर चलना है, फर्स्ट पे भी उतना ही चलना था मुझे जितना सेकंड पर चलना पड़ रहा है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का, यानी पहला चीज़ जब दूसरे वर्ड का अपोजिट में आए तो यहाँ पे इसे कहते हैं। फर्स्ट द पोइट फाइंड, पहले पोइट ने क्या फाइंड किया था कि फर्स्ट रोड जो है उस पर ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर जब वो चला दूसरी रोड पे तो उसे समझ आया कि दोनों पे बराबर चलना है। तो इस चीज़ को एक कहते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ एंथेसिस, ANTITHESSIS, ANTITHESIS. So note down this word. Now line 11 and 12. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Here पोइट फ्लैशबैक में जाता है जहाँ की पोइट इमेजिन करता है जब वो मॉर्निंग में उस रोड पे खड़ा था और डिसाइड करना चाहता था कि मैं फर्स्ट रोड को लूँ या सेकेंड रोड को लूँ, फ्रॉम विच रोड आई विल गो। दैट टाइम पोइट गोज टू दैट फ्लैशबैक टाइम, और वहाँ पे वो सोच रहा था कि मुझे कौन सी रोड लेनी चाहिए। ही फाउंड दैट बोथ द रोड्स वर लुकिंग सेम एंड बोथ द रोड्स वर कवर्ड विथ ऑटमन लीव्स। उसने यही देखा था कि जो दोनों रोड है दोनों वो सेम है, और उसके लिए टफ था इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रास्ता ईजी है, क्योंकि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मीन्स वहाँ पे कोई स्टेप नहीं थे, कोई पदचिन्ह नहीं था जो लीव्स को कड़कड़ाती लीव्स को तोड़ता हुआ कभी गया हो या उस जगह से निकला हो जो उन पत्तों पे पड़ा हो, ताकि वो शो करे कि कोई इस रास्ते से गुजरा है। इट मीन्स कि पोइट ही पहला इंसान था जो उस रास्ते से गुजर रहा था। बट दीज टू अबव लाइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। इमेजरी मीन्स कि पोइट यहाँ इमेजिन कर रहा है, वो एक तो फ्लैशबैक में गया जब वो वहाँ खड़ा था और वो डिसाइड करना चाह रहा था कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, फिर वो ये इमेजिन कर रहा है कि इस रोड से इसमें कोई नहीं गया होगा, मैं पहला हूँ जाने वाला, क्योंकि यहाँ के बिखरे हुए पत्तों पर किसी के पाँव के निशान नहीं है, ना ही कोई फुट स्टेप है, ना नॉट स्टेप, नो इज इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो ये एक एग्जाम्पल है इमेजरी का। इमेजरी IMAGERY, note down this also. This is also very important point. Now line 13 to 15 means, oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. The poet here saves the first road for the another day. पोइट ने पहली रोड को दूसरे दिन के लिए रखा था कि मैं इस रोड पे कभी और जाऊंगा, जबकि वो ये फैक्ट जानता है कि वापसी किसी भी रास्ते पे जाने के बाद उस पे वापसी होना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे लाइफ से भी हम इस चीज़ को सिमिलर देख सकते हैं कि लाइफ में भी कभी कभी एक चॉइस को लेने के बाद उस पे वापस आना बहुत मुश्किल होता है। एज सेम पोइट के साथ भी यहाँ पे यही हुआ कि जब वो एक रास्ता चुन चुका था और वो अब अपने आप को समझा रहा था कि मैं उस पहले रास्ते पे कभी और जाऊंगा, फॉर अनदर डे के लिए मैंने उसे रखा है, जबकि वो जानता है कि वापस आना इम्पॉसिबल है। और थर्ड लाइन में यानी 15th लाइन में, देन इन द थर्ड लाइन ही अफर्म्स सेइंग दैट ही इज़ इनफ डाउटफुल ऑफ रिटर्निंग एंड वॉकिंग ऑन द फर्स्ट रोड। वो जबकि बहुत डाउटफुल है कि वो वापस, इफ़ आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मीन्स poet is also in doubt he should ever come back. Here these oh, I kept the first for the another day and I doubted if I should ever come back. These two lines are the antithesis. Here again we see antithesis, which means the statements are opposite of each other. पहली लाइन में जैसे पोएट कह रहा है कि मैंने पहली रोड को अनदर डे के लिए रख दिया था, जबकि वो उसके बाद वाली के लाइन में कह रहा है कि जबकि मुझे डाउट है कि मैं वापस इस रास्ते पे कभी आऊँगा या नहीं। मीन्स
कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे की एंथिसिस हैं, यानी कि एक में कहना उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, दूसरे में उसके अपोजिट बात करना, इस चीज़ को एंथिसिस कहते हैं, जो कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था. I shall be telling this with a sigh. This is line 16, last para of your poem. I shall be telling with a sigh. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and age hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. इस वाली लाइन 16 to 19 में पोएट अपनी फेल्योर को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो फेल हो गया सही रोड को चुनने में. दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोइट्स फेल्योर इन चूजिंग द राइट रोड. ही यूजेस द वर्ड साई, जो कि साई वर्ड डिसअपॉइंटमेंट पोइट का शो कर रहा है उसके खुद के डिसीजन पर, कि ही इज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड विथ हिज ओन डिसीजन. हियर ही एक्सेप्ट दैट ही इज़ फेल in choosing the right decision, in choosing the right road. He says that he will announce this very incident where he faced two similar looking roads and choose the less traveled one. जैसे उसने देखा कि मैं दो रोड्स हैं और मैंने जिस पे कम चलना हो वो चूज़ किया था. यहाँ पे पोइट इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, जबकि उसे पता चलता है वहाँ चलने के बाद कि वो भी कम नहीं है, उस पर भी कम नहीं चलना है. And that has made all the difference. The poet here affirms that his choice of the road has brought a big difference in his life in negative. मीन्स कि ये ही एक चीज़ थी जिससे पोइट को समझ आया कि ही इज़, जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलत डिसीजन लिया, गलत रोड सेलेक्ट की, और ये बात एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यही बात द पोइट हियर अफर्म्स that his choice of the road has brought a big difference in his life in नेगेटिव में इसकी पोइट की लाइफ में ये चॉइस बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर के आई. हियर पोइट वॉन्ट्स टू से दिस. सो होप सो you all will understand this poem very well and can do the exercise which we will send you. Stay safe, stay healthy, and follow the lockdown rules. Keep going, and if for any query, contact to your teachers and school friends, school family. Here we are always available for you all. Thank you.